ओके सो वेलकम एवरीवन एंड आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे हैं गुरुशा, जिनको आप जानते हो जीसी इन इंग्लैंड के नाम से भी। सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो हर। तो आज हम इनसे कुछ बहुत ही डीप बातें करेंगे, जानेंगे कि ये यहाँ पे कैसे आए, इनकी लाइफ यहाँ पे कैसी चल रही है, और गुरुशा है कौन, कहाँ से आए हैं, कौन है जीसी इन इंग्लैंड, मोर अबाउट इट। सो ओवर टू यू जीसी। फर्स्ट, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अ बिट? Yeah, sure. Thanks, Momika, for having me in this podcast. So I moved from India to UK in 2022 on skilled worker visa, and I landed as a job as a software QA engineer in the UK, and which was a sponsored job. And in the past history back in India, मैंने BTech किया हुआ है. Like it was a 4 degree course, like from 2014 to 2018. And after that, I worked in IBM as a test automation engineer for 2 to 3 years. And then I thought, okay, let's just, get the international exposure. And so, yeah, that's when I started giving interviews for UK just. And yeah, it was not an easy journey. Like it was a struggle of 5 to 6 months journey where you start giving interviews, then you start about knowing, okay, what is the interview procedure, or what are the companies that can sponsor you or your visa, what are the skill set required in the foreign country like say UK here. So yeah, it was more of a research which takes time. So yeah. आई नो, आई थिंक जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आप किस लेवल पे रिसर्च कर रहे हो। एंड एज यू सेड कि आपका फोकस बहुत क्लियर था कि आप यूके को फोकस कर रहे थे, बट एट टाइम्स मैंने देखा है कि बहुत से माइग्रेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि हमें कहीं भी मिल जाएगा, लाइक यूके चले जाएंगे। स्पेशली हमारी कंट्रीज में अगर देखें तो लोगों को लगता है ना बस बाहर निकलना है ना। ऐसा नहीं होता कि यूके जाना है या यूरोप जाना है या कनाडा जाना है। इट इज लाइक हम कहीं भी चल जाएंगे, बस हमें बाहर निकलना है, पैसे कमाने हैं एंड ऑल दैट। तो जैसे कि आपने टच बेस किया आपकी मतलब लाइफ इन इंडिया, सो वेयर आर यू फ्रॉम इंडिया? आप वहां पे क्या करते थे? यू ऑलरेडी टोल्ड लाइक यू डिड बीटेक एंड ऑल, बट आप कहाँ से हो? थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन आप दोगे सबको? Yeah, sure. So I'm basically from a small town in Haryana, and I was born and brought up in Haryana, and did my graduation also in the Haryana itself. And then I got my first job in the IBM, which was in the Bangalore. So then I moved to Bangalore because तब तो work from office था. तो yeah, and after that then COVID हुआ 2019 में, तो I had to come back home because फिर work from home का थोड़ा हो गया था. And then definitely फिर वहां से थोड़ा time जो spend कर लिया 2 3 years कर लिए. Then I started giving interviews for UK jobs, and yeah, now I'm here. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब आपने जो कोर इंडियन बैंगलोर का आईटी वो है वो भी एक्सपीरियंस किया है, प्लस यू आर Yeah. हियर नाउ एक्सपीरियंसिंग द यहाँ की जो टेक इंडस्ट्री की जो लाइफ है वो भी आप एक्सपीरियंस करो। वेरी नाइस। तो अभी जैसे आप यहाँ पे मूव हुए तो उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा चैलेंज फर्स्ट इंस्टेंट में जब आप मूव हुए तो आपको क्या आया था यहाँ पे? सबसे बड़ा challenge, okay, so understanding British accent, I think. Yeah, so it was my first job. तो अब हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, आई वाज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ऑब्वियसली. सो उसमें स्टैंडर्ड्स रहती है, अजाइल मॉडल होता है तो स्टैंडर्ड्स रहती है, डेली 15 मिनट्स मॉर्निंग की होती है. तो उसमें डिस्कशंस होती थी तो ब्रिटिश एक्सेंट में, और हर किसी का यहाँ पे एक्सेंट डिफरेंट होता है. लाइक से डिफरेंट पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट ब्रिटिश सिटीज, सो एवरीवन हैव अ different kind of accent actually. So to understand, what they are saying, what they're not saying, so I just had a conversation with my colleague. I'm not able to understand I know English, but the British accent is little different, because in Bangalore also we used to have a conversation in English only. But yeah, here the British accent was little bit different for me in the meetings. So she told, oh, it took me time also, है ना, to get adapted to their accent, to understand what they are saying. So it's okay, take your time. So I think it took me 2 to 3 months, to understand. But yeah, it was okay when you start communicating with the locals, because you are surrounded by the Britishers. So anywhere you go for shopping, or for just for a cafe or restaurant, anywhere you have to communicate in English with the Britishers. So that's how you start understanding. And in the meetings also, every time in every meeting they will be speaking. So then you start understanding them as well. So that was the one culture, and the main thing was the work-life balance. To be honest, तो वहां पे तो इंडिया में तो आप मतलब ऐसा कमिटमेंट नहीं होता, बट ऐसा होता है कि जब तक, जब अगर काम तक भी आ गया,
so you have to sit and you have to do your, you have to complete it. But यहाँ पे it's like 9 to 5 job रहता है, और उसके बाद you don't have any, it's not expected from you that you have to sit after that, and just you just enjoy your life. So I felt the work-life balance is really nice here. आई टोटली अग्री। आई मीन जो वर्क लाइफ बैलेंस एक ऐसा फैक्टर है जो कि वी ऑल फील, स्पेशली आई थिंक ये यूरोप साइड एंड यूके साइड ज्यादा है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे वो यूएस वगैरह मूव हुए हैं, तो उनको लगता है, जैसे येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड एंड शी वाज सेइंग आई एम बर्नड आउट, लाइक इतना काम है and इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। वेयर एज यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर कभी कभी जैसे मेरे साथ टाइम मैनेजमेंट में से नहीं हो पाता, मैं लाइक 11 o'clock रात को अपने बच्चे को सुलाने के बाद में मेल्स वगैरह का रिप्लाई करती हूँ, तो नेक्स्ट डे मेरे मैनेजर्स एंड ऑल मेरे को क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि व्हाई आर यू वर्किंग सो लेट, बिकॉज वो नहीं चाहते कि ये चीज उनके मतलब कल्चर में या उनके वर्क उसमें आए। एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि जो इंडियंस आ रहे हैं स्पेशली, या फिर एशियंस आ रहे हैं यहाँ पे, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो उस कल्चर को खराब भी कर रहे हैं, क्योंकि देर आर सम टीम्स एंड देर आर सम लेट्स से जहाँ पे आपके मैनेजर्स आर फ्रॉम दैट सेम बैकग्राउंड, राइट, सो दे कम हियर और उनकी एक्सपेक्टेशन भी वैसी हो गई है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो लोग भी ऐसे बता रहे हैं कि कोई उनको तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करता। तो आई थिंक इट इज मोर टू डू विद द कल्चर, आप किस में काम कर रहे हो और क्या कर रहे हो, और मुझे लगता है कि अगर कोई मूव कर रहा है तो उसको डेफिनेटली अडेप्ट करना चाहिए। एंड यू राइटली मेंशन राइट कि आपको जैसे इशू आ रहा था लैंग्वेज में, तो यू स्पोक टू समवन विच इज समथिंग आई रियली लाइक, जैसे आपने बोला, क्योंकि यूजुअली हम क्या होता है, हम घबरा जाते हैं कि यार हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, हम या तो चुप रहेंगे या मीटिंग्स में बोलेंगे ही नहीं, बट गुड गुड दैट यू एक्चुअली स्पोक अबाउट इट टू समवन, एंड आई एम श्योर अब आपको लगता होगा आप कंफर्टेबल हो गए उस जोन में। Definitely, definitely. I'm a pro now. हाँ, तो वो एक लर्निंग है फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग कि Yeah, अगर आप कभी भी यहाँ पे मूव कर जाते हो तो मेक श्योर कि आप भी उस चीज को अडेप्ट करने की कोशिश करो, rather देन जस्ट सिटिंग बैक एंड यार हमसे नहीं हो पाएगा। है ना। तो definitely. Yeah. तब आप ये, अगर मैं वर्क कल्चर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो आपने बैंगलोर में भी काम किया है, यहाँ पे भी काम किया है, तो अपार्ट फ्रॉम वर्क लाइफ बैलेंस आपको क्या लगता है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स स्पेशली फीमेल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको क्या लगता है क्या डिफरेंसेस हैं? अगर हम इंडिया और फिर यहाँ यूके की वर्क कल्चर की बात करें, तो आई थिंक एक और चीज है जो टच बेस में करना चाहूंगी कि यहाँ पे मेंटल अवेयरनेस एंड मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फोकस करते हैं। एनी एम्प्लॉयर का प्रेशर फॉर एनी ऑफ द वर्क, एंड दे आर जस्ट वेरी फ्री, दे शुड बी वेरी केयर फ्री, like and if they have any issues they can talk to the HR, so they really focus on the mental health of an employee, and it's not just about the work, it's about the employee wellness and all. So that is also a good thing which they focus, I think. या एंड हाउ अबाउट योर जॉब, लाइक आप यहाँ पे जब जॉब में आए तो आपको याद है आपने कितनी एप्लीकेशंस करी थी रिसर्च के साथ साथ? I think 500 plus. It was too many. I don't have the count also, because sometimes we do easy apply. Sometimes we go to the link of that website, from the LinkedIn. And also it was not just only the LinkedIn, और भी website रहती हैं जहाँ से apply करना रहता है. Like UK के लिए तो Indeed is the #1 job platform. तो वहाँ पे भी काफी जॉब, अच्छी कंपनीज की जॉब पोस्टिंग्स निकलती रहती हैं. फिर totaljobs.com भी है यूके में जो यूज होता है. तो मल्टीपल साइट से जाना होता था, मल्टीपल जॉब्स को अप्लाई करना होता था, कभी कैरियर पेजेस पे भी अप्लाई किया जाता था. तो वो एक जर्नी थी जिसमें सीखा कि अच्छा, इजी अप्लाई करने से टेंशन नहीं मिलती है कैंडिडेट्स को, या फिर कैरियर पेज पे अप्लाई करने से ज्यादा टेंशन मिलती है. सो इट वाज अ होल जर्नी व्हिच आई लर्नड, एंड दैट्स हाउ द जीसी इंग्लैंड वाज बोर्न. नाइस, तो वैसे ही फिर आपको मोटिवेशन आया कि मैं लोगों को भी सिखाऊं कि यार ऐसे। या एक्चुअली बिकॉज डायरेक्शन नहीं होती लोगों के पास. आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि वो डायरेक्टली इंडिया से यूके जॉब के बेसिस पे आ सकते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल नो दे कैन कम ओनली ऑन द स्टूडेंट वीजा, दे कैन ओनली कम फॉर द स्टडीज. बिकॉज जब डीसी इंग्लैंड को बनाया चैनल को, तो मैसेजेस आते थे कि आपको आप जॉब पे कैसे आए, तो आपसे कितने पैसे दिए गए, बहुत सारी चीजें पूछते हैं. So definitely I didn't pay anything because it was skilled worker visa which is sponsored by the company, and the application fee, IHS, everything is paid by the company. Yeah, there are some restrictions which varies from company to company. Like some pay IHS, some don't pay IHS, but application fee and your flight ticket, those things are sponsored by the company. अच्छा, So तो yeah. आपके केस में स्पॉन्सरशिप उन्होंने दी, प्लस उन्होंने वीजा के चार्जेस और आपके यहाँ पे स्टे वगैरह के भी चार्जेस दिए, अकोमोडेशन
accommodation, everything? No. Stay because my brother was already living here, so I joined him when I came. And but yeah, initially they mentioned, for 1 or 2 months they would be paying, but I didn't require. So yeah, नहीं दिया था, ओके, बट ओवरऑल उन्होंने बाकी सारी आपकी कॉस्ट बेयर करी? क्योंकि मेरे yeah, केस में जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा स्किल वर्कर वीजा नहीं था, बट मेरा क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर था, माय हस्बैंड वाज ऑलरेडी हियर, तो उन्होंने मुझे अकोमोडेशन, फ्लाइट्स एंड ट्रांसफर चार्जेस एंड ऑल दैट, तो ये सब भी दिए थे। तो अगेन एज यू सेड राइट कि आप कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ कुछ कंपनी yeah. आजकल ये नया स्टार्ट हो चुका है विच आई एम हियरिंग अलॉट, कि वो वीजा स्पॉन्सरशिप के लिए भी सिर्फ सीओएस दे रहे हैं, एंड देन दे आर सेइंग कि वीजा के चार्जेस आप पे करो, बिकॉज अभी रिसेंट टाइम्स में काफी वीजा के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, स्पेशली लोग जो फैमिली को लेके आना चाह रहे हैं, तो वो कंपनी पे भी काफी ज्यादा मतलब भारी अमाउंट हो जाता है ना, तो वो लोग अब ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आप हम सिर्फ सीओएस दे देंगे आपको और आप अपना वीजा खुद रेस करो। तो या आई थिंक वो आईटी कंपनीज में इतना ऐसा नहीं होता. मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज आर एलिजिबल टू गिव टू स्पॉन्सर देयर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि आईटी इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग स्किल्स इन द यूके, जो हमेशा शॉर्टेज में रहते हैं जिसके स्किल्ड वर्कर्स. मोस्ट ऑफ द कंपनीज आई थिंक गिव, बट आई थिंक इट हेल्थ केयर इंडस्ट्री में शायद ऐसा हो रहा है कि ऐसा किया जाता है, बट आईटी में तो आई थिंक दे आर विलिंग टू गिव द स्पॉन्सरशिप. या बट अगेन जैसे आपने बोला आपका भाई यहाँ पे था, तो आप थोड़ा सा टच बेस करोगे अपनी फैमिली के बारे में कि वो कहाँ पे हैं, और सिंस योर ब्रदर इज हियर तो आपका एक्सपीरियंस और उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा है? Yeah, sure. So my brother came here on student visa and in the Masters of Finance course, and my mother is also with me, and she's working as a chef, and she has also got a skilled worker visa. Yeah, we all are वाओ, living together. तो देखो ये होती है फैमिली जिसमें कि सबके पास में यहाँ पे वीजा है। तो थोड़ी सी स्टोरी आंटी के बारे में तो Okay. बिकॉज आई एम श्योर जब लोगों को ये पता लगेगा, तो आई एम श्योर आपने जीसी इन इंग्लैंड पे ये चीज शेयर नहीं करी, एंड वी आर शेयरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो हम सब जानना चाहेंगे कि आंटी को ये वीजा कैसे मिला या उन्होंने कैसे अप्लाई किया? Yeah, so she arrived here on a student visa. So that is also I'm revealing for the first time here. So yeah, she really worked hard, I think. Then she started working in the care home, and her skills was good enough, to get her skilled worker visa in a chef. So yeah, so earlier she was doing as like part time there, because I guess studies 20 hours allow करता है, उससे ज्यादा नहीं करता स्टूडेंट्स को. बट उनको काम पसंद आया तो डेफिनेटली स्पॉन्सर. या ओह नाइस, सो बेसिकली वो जिस जॉब में पार्ट टाइम कर रहे थे उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया एज अ शेफ? मतलब एक्चुअली वहां पे भी उन्होंने एज अ पार्ट टाइम किया था, और फिर उन्होंने स्विच किया तो दूसरी जगह उनको मिला. ओके, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुका था. आई थिंक दैट इज मोर इंस्पायरिंग स्टोरी देन अस, क्योंकि पेरेंट्स आई मीन एट दैट एज, क्योंकि हो जाता है ना यार कि यू कांट स्टडी नाउ एंड यू या हैव टू या हैव द ज़ील। अगेन या यहाँ पे या दिस इज योर मदर्स एग्जाम्पल कि जब तक आपकी वो चाह नहीं होगी ना कि आपको कुछ करना है, लाइक मे बी शी वुड हैव दैट इन माइंड, एंड तभी वो उस एज पे भी स्टूडेंट वीजा लेके आना, पढ़ाई करना और उसके साथ में फिर या वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब लेना, इट इज अ बिग बिग अचीवमेंट आई वुड से। सो या so डेफिनेटली. overall you, that means you all are staying as a family in या oh very nice, तो ये तो आपने फैमिली गोल्स सबके लिए सेट कर दिए या आई थिंक जीसी फैमिली शुड बी द नेक्स्ट वन जो जो नया चैनल होना चाहिए Yeah, if my mother can give her contribution in the videos and all. Sometimes I try to take her in the videos. You must have seen in the stories, but she always goes away. नहीं नहीं नहीं. आई नो, बट आई एम श्योर शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन, बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मम्मी को भी बोलूँ ना कि आप पढ़ाई के लिए आ जाओ एंड ऑल कर लो, शी वुड नेवर एवर डू दैट। Yeah, it was very difficult. Yeah, I'm grateful. Yeah. या एंड स्टडीज के साथ में बच्चे भी मैनेज एंड घर भी एंड देन पार्ट टाइम भी, तो इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि आप तो स्किल वर्कर पे आए हो, बट आपने अपनी फैमिली में देखा है कि ये स्टूडेंट वीजा पे आके फिर पार्ट टाइम करना, तो आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है इजीली, या फिर बहुत हाइप बना देते हैं ना कि अरे तुम तो स्टूडेंट वीजा पे चले जाओगे इतने लाखों कमा लोगे, इंडिया में तो ऐसी बातें होती है राइट, तो क्या है एक्चुअल स्टोरी?
तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट वीजा पे लाइक जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो अब कई तो जो आते हैं लाइक फुल फीस देकर आते हैं यहाँ पर, बट कई बार क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, दे अलाउ यू टू पे द फीस इन द इंस्टॉलमेंट्स, तो वो कुछ फीस देकर आते हैं, कुछ उनको पढ़ाई के साथ देनी होती है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो रेंट है वही इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं, लाइक £500 to £800 पर मंथ हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो आई थिंक उसको मैनेज करना विद योर अदर लिविंग कॉस्ट लाइक ग्रोसरी, योर ट्रांसपोर्टेशन, सो एवरीथिंग एक्सपेंसिव, तो बच्चा सोचता है कि चलो अगर यहीं से पार्ट टाइम जॉब कर लिया जाए। बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, बिकॉज आई ऑल्सो टेक इंटरव्यूज एंड आई हैव माई फ्रेंड्स वर्किंग एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टडीज का इतना प्रेशर नहीं रहता, लाइक स्टूडेंट कैन मैनेज पार्ट टाइम जॉब along with the studies. It's like you have to keep balance between both of the things. And so yeah, definitely part-time job is important. It's a challenging because you are managing both of the things together. Like I've seen my mother, I've seen my brother, but if you have someone supporting you, like I was supporting them definitely. But so yeah, I think it's fine for them. Yeah. या एंड आई थिंक बस एक यहाँ पे बहुत थिन लाइन हो जाती है ना, जैसे आपने बोला मैनेजमेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इतने ज्यादा पार्ट टाइम जॉब में घुस जाते हैं कि वो एक्चुअल मोटो की हम यहाँ पे मास्टर्स करने आए थे या Exactly. पीएचडी करने आए थे वो ही भूल जाते हैं, और फिर पेपर Exactly. क्लियर हो रहे, मेरे को यूनिवर्सिटी ने मतलब मार्क्स नहीं दे रहे, पास नहीं कर रहे, तो Hmm. वो चीज आई थिंक लोगों को समझनी चाहिए कि आप पार्ट टाइम डेफिनेटली कर सकते हो, आप मतलब अपना टुडे एक्सपेंस भी चला सकते हो, बट अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हो वो चीज। Yeah, yeah, definitely. I have heard a lot of students as well who couldn't clear their final exams or those kind of things or their dissertation or something. So कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो assignments भी बाहर से बनवाते हैं. So those things are also like they shouldn't do. I would suggest assignments कोशिश करें कि खुद से ही बनाएं. And जब आपको लगे कि आपको studies पे ज्यादा focus करना है, तो shifts के timings थोड़े कम ले लें या उन दिनों में shifts ना करें, क्योंकि because at the end of the day, for what you have arrived here, you should not forget that thing. Your main purpose was to study and post graduated from this country and then land a good job in the UK. Because after the post graduation also they have to search a sponsored job. So उसके लिए भी थोड़ा skill set prepare करना है. उसके लिए they should have degree, only then they can apply for the job. अब तो ऐसा एक वो भी आया था, law भी आया था कि unless until the student is done with their degree, they can't switch to skilled worker visa or some other visa. So now completing the studies end to end and getting a degree is important to apply for an sponsored job in the UK. So they should focus on the studies as well. But yeah, it's more, like you mentioned, it's about managing both of the things. Yeah. मैनेजमेंट से यहाँ पे याद आता है, मुझे लगता है एंड आप भी शेयर करना कि मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो कि यहाँ आके सीख जाए। Yeah, that is a very good question. तो ये भी बहुत ऐसा कल्चर था जो यहाँ के बहुत शॉकिंग था, इंडिया में यू गेट सो मच हेल्प, लाइक यू गेट मेड्स कि काम वाली बाई होगी जो बर्तन देखेगी, जो सफाई देखेगी, एंड घर के कुछ बिल्स के काम होंगे तो वो पापा लोग देख लेंगे या कुछ ऐसा सब कर लेते थे अपना। बट यहाँ पे हर चीज आप अकेले हो, आपको ही मैनेज करना है, आपको बर्तन भी खुद से करने हैं, आपको सफाई भी वीकेंड्स पे खुद करनी है, बर्तन तो डेली करने हैं, सफाई भी आपको वीकेंड्स पे कुछ नहीं करना तो वो तो करनी ही है, तो ग्रोसरी लेके आनी है। मुझे तो लगता है मैंने सबसे ज्यादा कुछ एक्सप्लोर किया तो वो ग्रोसरीज ही है यहाँ पे, और कुछ तो एक्सप्लोर किया ही नहीं है। और लाइक टेस्को, सेन्सबरी, माय लाइफ इज सराउंडेड। मुझे अब समझ आया है कितनी कौन सी चीज कितने की आती है। सो या सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स डेफिनेटली। अभी कुछ टाइम पहले हमने गार्डन मेंटेन कराना था बिकॉज हमने न्यू हाउस में मूव किया, तो गार्डन को मेंटेन करना आता ही नहीं था, और गार्डनर फीस अच्छी लेता है यहाँ पे, तो हर चीज एक्सपेंसिव है। बट फर्स्ट टाइम सोचा नहीं करा लेते, नेक्स्ट टाइम से खुद से करेंगे, तो गार्डनर को बुलाया, उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करी, कभी कारपेट क्लीन करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, खुद से नहीं हो पाता कई बार। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ जो यहाँ पे मैनेज करनी होती है। डेफिनेटली इट्स रियली डिफिकल्ट, बट आई थिंक एज यू स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड इन टू द सेम कंट्री, यू गेट अडेप्टेड टू द कल्चर। आपको समझ में आ जाता है कौन सी चीज कैसे मैनेज करनी है और कितनी मैनेज करनी है, और एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि यहाँ के लोगों से भी मिलते हैं, वो भी कुछ समझाते हैं, उनसे भी कुछ सीखते हैं, तो आप अडेप्ट हो जाते हैं। आई थिंक आई एम स्लोली स्लोली, पूरी तरह से नहीं हुई बट हो रही हूँ। सेम है, आई थिंक जितना भी पीरियड हो जाता है एज यू सेड राइट, वो मुझे लगता है वो फेजेस हैं, एंड अब या शायद हम लोग इंडिया
आई रियली सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को मिस करती हूँ तो मेरी मेड और कुक। That's true. तो आई इवन कॉल देम नाउ, लाइक कभी कभी मैं उनको कॉल भी कर लेती हूँ कि आंटी क्या हाल है, भैया क्या हाल चाल है। क्योंकि मेरे को कभी कभी लगता है हाय मैं थक गई हूँ, बट अगेन व्हेन यू सी कि लाइफ इतनी ज्यादा फास्ट पेस भी नहीं है, स्लो पेस भी नहीं है, बट मैनेज्ड है, कि हमारे टाइम स्लॉट्स हैं राइट, कि इतने बजे हमें ये करना है, इतने बजे हमें ये करना है, तो एक टाइमिंग के थ्रू होती है। वरना वहां तो क्या होता था कि चाय पे गए हैं तो 2 घंटे चाय पे निकल गए हैं, टाइम है ना, या या चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा हो रही है या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मैंने तो काफी ज्यादा सीखी है, आई एम श्योर आज जैसे कि आपने बोला सबने सीखी है। आप बात कर रहे हम्म। थे कुछ अपॉइंटमेंट्स की, तो थोड़ा सा हम्म। आप बताओगे कि गार्डनिंग का यहाँ पे कितना चार्जेस होते हैं? या सो हमारा ज्यादा बड़ा गार्डन तो नहीं है, मतलब एक जो नॉर्मल घर के बाहर रहता है वही है। तो उसके हमारे लगे थे 40 पाउंड्स, लाइक और हमें लगा था कि ही विल स्पेंड सम टाइम, बट क्योंकि बहुत ज्यादा जो ग्रास थी वो काफी ग्रो हुई थी और काफी लाइक इतनी बड़ी बड़ी हुई हुई थी, और एवरीवेयर इट वाज स्प्रेडेड। तो हमें था कि चलो ही विल ब्रिंग हिज मशीन्स एंड ही विल मेंड आवर गार्डन, तो इट विल टेक सम टाइम। तो आई थिंक विद इन 15 मिनट्स आई थिंक उसने सब कुछ कर दिया, और माय मदर इज लाइक जस्ट इट्स डन, it's done. So yeah, it's really expensive, 15 to 20 minutes, 40 pounds, like 4,000 in Indian rupee. आई वुड से ये काफी चीप है। एंड अगेन यहाँ पे भी एक बात आ जाती है कि यहाँ पे ना प्राइसेस बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। आप Yeah, जितना लंदन के पास में रह रहे हो उतने yeah, लंदन definitely. में रह रहे हो वो प्राइस Yeah. अलग ही होंगे, और जितना आप लंदन के पास में, लाइक हम लंदन के पास में हैं तो हमारे प्राइसेस भी आजकल एकदम स्काई रॉकेट हो रखे हैं, ऑलमोस्ट लंदन को टच कर रहे हैं। अब थोड़ा Mm. सा आप दूर चले जा रहे हो तो आपके प्राइसेस थोड़े से कम हो जा रहे हैं। मैं अपना Mm. एग्जांपल दूं, हमने भी एक बारी गार्डन सिर्फ एक बारी कराया था, क्योंकि उसके बाद हमें लगा कि हम खुद कर लेंगे। Yeah, yeah, yeah. 250 पाउंड्स दिए थे। 250. यस 250। Seriously. जस्ट और फिर वो Okay. बस मशीन आई और 15 मिनट, शायद 20-25 मिनट लग गए होंगे Oh my God. Okay. क्लीन करके। Yeah, because your Milton Keynes is near to the London, so I think that's why your guys' rates are really high. Because we live in the north, like I live in the West Yorkshire, जो लीड्स को टच बेस करता है, है ना? तो फिर वहां पे रेट्स थोड़े से डाउन है। रेंट्स की भी बात करें अगर, या फिर यही कोई भी अपॉइंटमेंट अगर आप लेते हैं, कारपेट क्लीनिंग की बात करते हैं या गार्डन की करते हैं, तो इट्स अ बिट चीपर है। या सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी देखना कि आप जब यहाँ पे मूव कर रहे हो कि आप कहाँ पे रह रहे हो, एंड उसके बेसिस पे आपके प्राइसेस चेंज होंगे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं आजकल राइट, Yeah, और yeah, हम सबकी देखते हैं ना मंथली एक्सपेंसेस की वीडियोस एंड ऑल दैट, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि वो मंथली एक्सपेंसेस कहाँ पे हैं। क्योंकि definitely. Yeah. वो एक्सपेंसेस लंदन या लंदन के आसपास वाली जगहों में बिल्कुल भी मैच नहीं करते। लाइक मेरे को कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने तो देखा है कि 300 पाउंड 400 पाउंड में अकोमोडेशन मिल जाती है, शेयर्ड Yeah. अकोमोडेशन एंड ऑल। वो चीज अगर मैं यहाँ देखूँ तो दिस वुड बी लाइक 700-800 में आपको शेयर्ड अकोमोडेशन मिलेगी। तो प्राइसेस जो हैं काफी ज्यादा वेरिंग है, एंड सेम Yeah. एज वी डिस्कस दिस गार्डनर का एग्जांपल राइट, तो Yeah. ये Yeah. भी काफी काफी ज्यादा वेरिएशन है। तो Yeah. ये Yeah. हम पैसों की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर कोई यहाँ पे जॉब में मूव कर रहा है, ठीक है, विद अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस लाइक यू हैड, लाइक मिड लेवल पे, तो उस पे आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए सैलरी की? Okay, it depends. Like, yeah, number of experience definitely decide actually, and also the profile. So if they have like 3 to 5 years of experience, or maybe say till 3 years, because I had the 3 years of experience when I moved. So I think 30 to 40 should be the expectation, and after that you can increase as per the number of years, as per the level of the job you are applying for, like it's a senior or it's the executive, those kind of, yeah. ओके। एंड ये जो आप रेंज बता रहे हो, विल दिस वेरी कि अगर वो लंदन में जॉब देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं? Definitely. हम्म। Definitely. If it's in London, then it should be 50 to 60 at least starting. वो कहीं ना Yeah. कहीं वो 10K का रेशियो हमेशा लोगों को Yeah. करना चाहिए। Yeah. क्योंकि यहाँ पे अगेन है जैसे हमने बोला ना, रेंट के एंड अदर प्राइजेस, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो वो भी एक चीज कंसिडर करने वाली होती है। तो योर ऑफिस इज इन लंदन, हाउ डू यू कम्यूट?
I commute sometimes by train, sometimes by bus. So trains sometimes are expensive. Though I have the rail card, without that I can't book the tickets. So थोड़ा सा cheap पड़ जाता है. But I think buses are the cheapest mode of traveling here. Like National Express रहती है, Mega Bus रहती है, Flexi रहती है. But I travel most of the times via National Express. Yeah. ओके, सो आपको ओवरऑल, मतलब मैं अगेन कंपैरिजन कर रही हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वर्सेस यूके, तो आप क्या बोलोगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लेवल तो यहाँ पे अच्छा ही रहता है एंड यू डोंट फील लाइक इट्स अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक सपोज ट्रेन यहाँ पे एज अ लग्जरियस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है इफ यू ट्रैवल टू ट्रेन्स ऑफ यूके सो definitely the facilities they provide like if you go in trains there is a small bar which will give you the drinks and you know the snacks or chocolates or the small things like wraps or those kind of things and you get the socket as well and there will be something on which you can place your coffee or something that table will be there so there are a lot of things I think so and definitely the cleanliness so that is the most important thing and the silence इट्स नॉट लाइक इंडियन ट्रेन्स है ना कि कोई अपने गाने सुन रहा है कोई अपने मैच देख रहा है कोई अपनी गेम खेल रहा है और सबकी वॉइसेस डिफरेंट डिफरेंट जगह से आएगी तो यहाँ पे एवरीवन इज जस्ट हैव देयर ईयरपोड्स इन देम एंड यू नो देन दे विल बी रीडिंग द किंडल और दे विल बी watching the movie it should be the without any noise so yeah those kind of things are nice आई and थिंक buses are also good नॉइज hmm. पोल्यूशन आपने बहुत अच्छा टच किया, क्योंकि मुझे लगता है वो ऑल ओवर हर जगह ही है, नॉट जस्ट ट्रेन्स एंड एवरीथिंग, बट हम लोग थोड़े से लाउड होते हैं बिकॉज हम लोग Hmm. वैसे एनवायरमेंट से आए हैं, वेर एज Hmm. यहाँ पे आई सी इवन व्हेन दे आर टॉकिंग इट इज लाउड, दैट इज फाइन, बट Hmm. ओवरऑल जैसे शोर मचाना या किसी को डिस्टर्ब करना इज नॉट समथिंग एज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, और दे रियली रिस्पेक्ट अदर्स प्लेस कि हाँ भाई और भी लोग हैं यहाँ पे, तो हमें नॉइज पोल्यूशन उतना नहीं करना चाहिए जितना वहां पे होता है, राइट? सो जैसे कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपकी लाइफ ओवरऑल, ठीक है, आप कैसे बोलोगे कंसिडरिंग आपके फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीथिंग, घूमना फिरना, तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल आपकी लाइफ इंडिया से यूके में कैसे चेंज हो गई? ओके इंडिया से यूके में लाइफ चेंज तो हुई है एंड अच्छे के लिए चेंज हुई है टू बी ऑनेस्ट सो नाउ इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशनल एंड द पर्सनल सो प्रोफेशनल डेफिनेटली आई हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस हियर व्हिच आई रियली enjoy so professional definitely it has improved and for professional also only I took this initiative you know moving from India to here एंड पर्सनली भी ऐसा लगता है किसी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे सब अपनी दुनिया में मस्त है कोई किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है यहाँ पे एंड एक सेट सा एक रूटीन रहता है कि 9 to 5 की जॉब करनी है एंड उसके बाद जो भी हाउस होल्ड वर्क करने हैं वो करो एंड आफ्टर दैट ग्रोसरी लाओ एंड देन सो जाओ सारे तो एक सेट सा रूटीन है एंड रही बात फ्रेंड्स की याद तो फ्रेंड्स का तो थोड़ा मैं मिस करती हूँ इंडिया वालों को डेफिनेटली बिकॉज यहाँ पे सब इतने बिजी हैं लाइक अगर आप स्टूडेंट्स को ले लो तो अब अपने यूनी के कामों में बिजी हैं वो अपने पार्ट टाइम जॉब्स में बिजी हैं तो दे हार्डली गेट टाइम है ना सो इफ यू आर एनी फ्रेंड हु इज स्टडिंग तो उनके पास टाइम इतनी आसानी से उनका अवेलेबल नहीं हो पाता और अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें जो हु आर नॉट स्टडिंग they have other commitments so yeah it's a little bit but yeah sometimes I really miss my friends but yeah I have friends here as well so I think it's okay I'm used to it now वही है ना कि आप एडजस्ट हो जाते हो और चीजें आप yeah कर लेते हो, एंड yeah मूव आउट करने के लिए किसी भी आप एनवायरनमेंट में हो, हम जब इंडिया में भी थे अपने घर से, जब हम बैंगलोर या दूसरी स्टेट्स में जाके काम कर रहे थे, तब भी वो मूव आउट करने के लिए यू हैव टू मिस समथिंग और लूज समथिंग, तभी आप आगे अचीव कर पाओगे। तो आई थिंक सेम definitely स्टोरी यहाँ पे भी है कि यहाँ मूव करने के लिए भी कुछ कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं जो हमें नहीं छोड़ने का मन है, बट अगेन yeah इट इज फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। या ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं एंड डेफिनेटली मैं जो सबसे ज्यादा मिस करती हूँ वो मैं इंडियन क्यूजीन फूड को मिस करती हूँ और अपने रिलेटिव्स के जो शादियां होती है ना इंडियन जो वेडिंग्स होती हैं जो कि बिग वेडिंग्स होती है लाइक हमारी तो लाइक महीने हम लाइक आई एम फ्रॉम पंजाबी फैमिली तो महीना तो फंक्शंस ही चलते रहते हैं यू नो एंड ऑल योर रिलेटिव्स हैव अ गेट टुगेदर पार्टी एंड ऑल दोस थिंग्स सो यहाँ पे वो सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी बिकॉज आपके रिलेटिव्स उसी कंट्री में आप छोड़ के आए हो तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दैट्स ट्रू वही बात
सो आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन या कह लो कि अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे, और आपका यहाँ पे करियर बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पे चल रहा है, आप यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में मूव हुए हो, आपको बहुत टाइम हो गया रहते हुए, तो मैं आपसे जाते जाते कुछ टिप्स मांगूंगी फॉर एवरीवन हु इज वॉचिंग, कि अगर उनको यहाँ पे मूव करना है, स्पेशली कंसिडरिंग योर बैकग्राउंड इनटू टेक या जॉब के लिए, तो उनको क्या वो ऐसी टिप्स हैं जो आप देना चाहते हो? Okay. So first of all, definitely your skill set. Learn those skills which are demanding in the UK. So वो कैसे पता लगेंगी आपको? Like when you see the job postings in the LinkedIn for any UK company or the company which is based in the UK. So check the skill set in that job description criteria and make sure that you have those skills, because at the end of the day, the technical questions will be asked from those skills only. So that is one thing. And the second thing, if you don't have the skills, then take the certifications and then get those skills, because sometimes I have seen in the job descriptions they mention explicitly that for this certification is required, or something like, if I say for the cloud, then Microsoft Azure Fundamentals, which is very basic actually, ISTQB. So it depends upon the job description. So check for any certification, those kind of things. And definitely the cover letter. So if you are applying, you need to make sure you have the cover letter with the resume. So that is also a different thing which I did for applying jobs in the UK in my journey. तो वो भी करनी चाहिए. And third thing, अपना resume optimize करना चाहिए as per the job description. Like it's very easy these days. You can just enter into the chat GPT the same job description for which you are applying, and you can give the and prompt to chat GPT, like create the resume on the basis of this job description or something like that. So it will just give you, and then you can definitely do some modifications as per your requirements, because the ATS will always see will look those kind of words कि job description match हो रहा है कि नहीं, job profile match हो रहा है कि नहीं. So ATS का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. So that is one thing. And other thing, I think, just be yourself, right? So अगर आप सोचेंगे कि आप रिक्रूटर्स को पागल बना देंगे कि कुछ भी आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं कहीं से और आप सेम वही आंसर दे देंगे, एंड यू हैव नॉट प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस दोज थिंग्स, है ना, इन योर वर्क. बिकॉज समटाइम्स मुझसे ऐसे कॉम्पिटिटिव बेस्ड या बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें आई हैड टू आंसर एज पर द सिचुएशन और एज पर माय वर्क एक्सपीरियंस व्हिच आई पर्सनली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग वर्किंग इन माय कंपनी. तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपको एग्जांपल से समझानी होती है, तो वो एग्जांपल्स मेक श्योर कि वो रियल एग्जांपल्स आप दे रहे हैं, आपने उस सिचुएशन में डील किया है और फिर उसका आउटकम क्या हुआ है. लाइक मैं क्या करती थी, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देती थी तो मैं स्टार टेक्निक यूज करती थी. तो जिसके अंदर अगर मुझसे पूछा गया कि अच्छा, कि अगर आपने स्क्रीनशॉट्स प्रिंट करने हैं तो आप उसको कैसे करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो अब स्क्रीनशॉट्स किस तरह से आप यूज कर सकते हैं उसको, मतलब क्या सिचुएशन होती है एंड उसमें आपको उस मेथड को इम्प्लीमेंट करने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, एंड एंड व्हेन यू वर डूइंग what are the challenges you face and how did you overcome those challenges. So it's like give them example, a real example, and tell them the challenges, tell them the outcome, how you dealt with that situation, and how the problem got solved. So they really get impressed by those kind of things. And another thing is, show them you are a very good learner. Like, even if you don't know anything, you should say them, okay, I don't know this thing, but I can definitely learn this if I am given a chance. Or I sometimes also they ask questions like, how will you make sure कि आप अपनी learnings को time to time upgrade कर रहे हैं. So मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता था तो मैं कहती हूँ, because they want to see, because it tech is like every day something new is coming, right? Every day is a new challenge in IT. So आप कैसे उस challenges से overcome करेंगे? तो definitely you need to take the trainings, you need to enroll yourself into the courses to make sure you are up to date with the industry trends, you make sure you are up to date with industry standards and that knowledge set, right? Because यहाँ पे कोई spoon feeding तो करेगा नहीं. They definitely expect you know something before in hand. So definitely you need to explain them, okay, via YouTube videos, via vlogs, via these kind of certifications, via Udemy or whatever is your source of information or certification. You should mention them so that they will see you a good learner in you. So those kind of things, I think, yeah.
ग्रेट, आपने बहुत ही मतलब अच्छे रिसर्च करी है, एंड दिस इज व्हाट इट शोज इन योर कन्वर्सेशन एज वेल, यू नो, बिकॉज द स्ट्रगल दैट यू हैव डन, और उसके बाद में आपने ये जॉब आपको मिली है। आई एम श्योर बहुत से लोग हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं, बट अगेन यू हैव टू हैव द राइट मेथड ऑफ अप्लाइंग, एज यू सेड, मेथड भी सही होना चाहिए। तो वो फर्स्ट आपका क्राइटेरिया हो जाता है, जहां पे आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको कॉल आ गई, तो दैट मीन्स आपने वो फर्स्ट स्टेज अपनी जब क्रॉस कर ली है, तो नेक्स्ट स्टेज की बात आती है कि अब आप इंटरव्यू में इंप्रेस कैसे करोगे, या अपने आप को पोजीशन कैसे करोगे। फिर वहां पे भी आपको एक मतलब ये ना सेकंड स्टेज हो जाती है, जहां पे लोग अपने आप को इंप्रेस करना या आप इंटरव्यू क्रैक करने वाली पोजीशन, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, अरे मुझे इंटरव्यूज तो बहुत आ रहे हैं, इंटरव्यू मेरे स्केड्यूल्ड है एंड ऑल दैट, but finally you are not getting a job, which means you are failing somewhere or the other. And I think this is a very good message that you gave, and I'm sure everyone would be impressed. So thank you for your time. I know आपका टाइम बहुत, और हम लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे ये रिकॉर्ड करने का, so thank you so much for coming on the podcast and sharing about your life, and I'll share all the details about GC in England, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और you can reach out to her, she is there to help you out and share whatever उन्होंने सीखा है या वो सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, वो सब कुछ शेयर करेंगे। So thank you so much for joining us today. Thanks a lot, Bhumika. It was really good talking to you. Thank you, GC.